Hello students, I am back with my session number 4 of chapter number 7, parts of a plant. Right? Today in session number 4, what I am going to explain you? I am going to explain you all the things about flower, fruit, seed and how plants are useful to us. कि plants हमारे लिए किस तरह से हमें यूजफुल होते हैं. But before I proceed to explain all the today's topic, let me revise all the last sessions. Last sessions में हम लोगों ने क्या किया? Vocabulary words, meanings, parts of a plant, root system, shoot system, and all the things about leaf. तो फटाफट से let's begin vocabulary words. Shoot, root, taproot, fibrous root, leaf blade, veins, stalk, seeds, mustard, nutrients, firmly, pumpkin, stomata, chlorophyll, climbers. Now meanings. Number 1, fibrous, made of many fibers or branches. Number 2, nutrient, a substance that is needed to keep a living thing alive and to help it to grow. Number 3, leaf blade, flat part of a leaf. Stalk, a thin stem that supports a leaf, flower or fruit and joins it to another part of the plant or the tree. Number 5, stomata, small holes on leaf through which air enters and helps plant to breathe. Number 5, germination, the process by which a seed starts to grow. Clear? Here we completed vocabulary words and meanings. Now let's begin parts of a plant. Kids, we all know clearly all the things about parts of the plants. मतलब whichever above the ground, what we are going to call is shoot, and whatever is under the ground, that is roots. तो shoot में कितने parts होते हैं? एक तो flowers होते हैं, leaves होते हैं, fruits होते हैं और stem होते हैं, right? These are the parts of shoot system. और roots में क्या होता है? Only roots. So how many types of roots are there? There are 2 types of roots are there. One is taproot and another one is fibrous root. The taproot is the main root that grows into the soil from the base of the stem. कि वो एक main base से ही एक main root होता है. Main root में से roots निकलते हैं. In other case, in fibrous root, the thing is totally different. Fibrous root are bunch of thin and bushy root that grows together into the soil from the base of the stem. मतलब जो stem होती है उसमें से कोई भी एक main root नहीं निकलता है, उनमें से roots में से roots, roots में से roots, roots में से root निकलते हैं, right? बल्कि taproot में ऐसा नहीं होता, एक main stem होती है, उनमें से roots निकलते हैं. But in fibrous roots कोई भी main root होता नहीं है, वो roots में से roots, roots में से roots बिल्कुल वैसे ही होता है. Understand? Now functions of roots. They help to hold the plant firmly to the soil. कि वो soil को firmly plant को firmly पकड़ने में help करता है. Point number 2. They absorb water and nutrients from the soil as plants require to grow. मतलब कि वो plant को requirement होती है grow होने की, उसमें वो क्या करता है तो पानी और nutrients को absorb करके plant को supply करता है. Clear? Now let's start shoot system. The shoot system consists of stem, leaves and flowers. Shoot system के पास main कौन से parts होते हैं? एक तो stem होता है, leaves होती है, flowers होता है, right? Now stem होती है, the stem is main part of the shoot. Stems can be soft,
weak or hard or woody. मतलब there are so many different kinds of stems are there. कोई soft होती है, कोई एकदम woody होती है, कोई एकदम hard होती है और कोई weak होती है, right? These are the different types of stems. Now functions of stem. They keep most plants upright. मतलब कि stem का क्या काम होता है कि वो stem को ऊपर की तरह खड़ा रखती है, right? They bear leaves and flowers. स्टेम से क्या कनेक्टेड होता है, मतलब कि वो किसको संभाल के रखते हैं, वो किसको कनेक्टेड करके रखते हैं, एक तो लीव्स को और फ्लावर्स को. They carry water and nutrients from roots to leaves. मतलब वो स्टेम होती है, वो रूट्स से पानी को एब्जॉर्ब करके वो सप्लाई किसको करता है, लीव्स को, ताकि वो अच्छी तरह से हेल्दी और फाइनली ग्रो हो सके. They carry food from the leaves to all the parts of the plant. दूसरा क्या काम है स्टेम का कि जो लीव्स फूड बनाता है वो दूसरे पूरे के पूरे प्लांट्स को सप्लाई करता है. So this is the work of stem. Now leaf. लीफ में क्या होता है, मैंने आपको बोला था कि आप अपने पास लीफ रख के बैठोगे. मैं यहाँ पे मैंने इमेज भी शेयर की थी, राइट? लीफ का फ्लैट पार्ट होता है उसको हम क्या बोलेंगे, लीफ बेड बोलेंगे. फिर लीफ के नीचे एंड वाला पार्ट होता है जो स्टेम को और लीफ को कनेक्टेड करके रखता है, उसको क्या बोलेंगे, स्टॉक. STALK, स्टॉक. फिर बीच में जो लाइनिंग्स होती है पतली पतली उसको क्या बोलेंगे, वेन्स. क्या बोलेंगे किड्स, वेन्स बोलेंगे. क्लियर? सो these are the parts of leaf. Now functions of leaves. मतलब कि leaf के क्या functions हैं? They prepare food for the plant in the presence of air, water and sunlight. मतलब कि वो पूरे के पूरे प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करता है, किसकी प्रेजेंस में, एयर, वाटर and sunlight की presence में. This is why the leaf is known as the food factory of the plant. That's why what we are going to call a leaf. Leaf को हम क्या बुलाते हैं, food factory of the plant. मतलब प्लांट के लिए leaf food factory है. Tiny openings on the leaves known as stomata. मतलब leaf के पीछे के पार्ट में छोटे छोटे openings होते हैं जिसको हम क्या बोलेंगे, stomata. As I told you in last lecture, we need air to breathe, right? Same as like that, plants also need air to breathe, right? तो वो किससे breathe करता है, वो stomata के थ्रू air को in और out breathe करता है. हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं. प्लांट का बिल्कुल उल्टा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, राइट? सो प्लांट्स आर सो यूजफुल टू अस. वो हमें फ्लावर्स देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, वेजिटेबल्स देते हैं, हमें क्लीन एयर देते हैं. मतलब कि हम कहीं पे भी बाहर जाते हैं तो हमें शेडो में रखते हैं, कोई भी सनलाइट होती है तो प्रोटेक्शन मिलती है. उसके लीव्स से हम मेडिसिन बनाते हैं. उसके ऊपर बहुत सारे एनिमल्स डिपेंडेंट है, वो हमें कॉटन देता है तो उससे हम क्लोथ्स बनाते हैं. मतलब कि उसके वुड से हम फर्नीचर बनाते हैं, राइट? तो दिस इज द लाइक प्लांट्स इज सो मच यूजफुल टू अस, राइट? Clear? Now let's begin our today's session. Topic number 1 about flower. Flowers can be different colors, shapes and sizes. Kids, we all are human beings, right? Still we have a different types of skin tones, we have different heights, we have different body structures, we all are different, right? But we are human beings. तो बिल्कुल ऐसे ही फ्लावर्स का भी ऐसा ही होता है. सब होते तो फ्लावर्स है बट उसकी साइज अलग होती है, उसके कलर्स अलग होते हैं, उसके शेप अलग होते हैं, उसके फंक्शंस अलग होते हैं. कोई बहुत ही स्मेल वाला होता है, कोई कम स्मेल का होता है, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई लंबा होता है, राइट? तो देयर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर्स आर देयर. तो हम उसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? तो किसी की स्मेल से, किसी के कलर को देख के, किसी की साइज को देख के, राइट? तो इजीली कैन डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स विथ देयर अनदर डिफरेंट फीचर्स, राइट? तो हम उसके फीचर्स को देख के उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट? लोटस है तो वो मतलब कि सबके साइज, कलर, सबकी इवन ग्रो होने की जगह भी डिफरेंट होती है. जैसे कि हम एटमॉस्फेयर अफेक्ट करते हैं तो प्लांट्स को भी एटमॉस्फेयर अफेक्ट करता है.
जैसे कि कोई कोई प्लांट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा समर सीजन में आते हैं, कोई कोई प्लांट्स होता है विंटर में आते हैं, राइट। तो उसको भी एक सीजन होती है कि वो किसी सीजन में सबसे ज्यादा ग्रो होते हैं। नाउ फंक्शंस ऑफ फ्लावर्स। The main function of flowers is to help a plants reproduce. सबसे मेन वाला फंक्शन क्या होता है कि वो प्लांट्स को हेल्प करता है रिप्रोड्यूस करने में। रिप्रोड्यूस मतलब कि एक प्लांट तो है, उनमें से दूसरा प्लांट ग्रो करना, ग्रो हो जाना अपने आप, या तो फिर कुछ भी किसी भी सीड से हमें ग्रो करना, मतलब कि उसका क्या काम होता है कि वो दूसरे प्लांट को रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। उसी टाइप का दूसरा प्लांट अपने आप रिप्रोड्यूस करने में फ्लावर इज द मेन पार्ट। क्लियर? मोस्ट फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट्स दैट कंटेन सीड्स। ऐसे मोस्टली ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो फ्लावर्स के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, किस फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और फ्रूट्स के अंदर क्या होता है, सीड्स होते हैं, राइट। फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं ना, जैसे कि पोमोग्रेनेट तो खुद इटसेल्फ सीड्स है। एप्पल के अंदर भी छोटे छोटे सीड्स होते हैं। फिर अभी पपैया होता है, उसके अंदर भी सीड्स होते हैं, राइट। तो बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, इसके अंदर मोस्टली सीड्स होते ही है। मतलब कि फ्लावर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट में। फिर फ्रूट के अंदर क्या होता है, सीड्स होते हैं। तो सीड्स में से वी कैन ग्रो डिफरेंट मोर, मतलब कि वी कैन ग्रो मोर ट्रीज, राइट। उसके सीड्स के थ्रू हम बहुत सारे दूसरे उसके जैसे ही ट्रीज प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। क्लियर? Once again I am reading functions of flowers. Listen it carefully. The main function of flowers is to help a plant to reproduce. Most flowers change into fruits that contain seeds. Now, second topic, fruit. Fruits such as mangoes and cherries have only one seed. ऐसे भी फ्रूट्स होते हैं कि जिसके पास सिर्फ एक ही सीड होता है। किस हैव यू नोटिस्ड मैंगो में एक ही सीड निकलता है, જેને આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ગોટલું, वो एक ही सीड होता है, राइट। चेरी के अंदर भी एक ही सीड निकलता है। देखा है कभी आपने? नहीं देखा है तो देख लेना। क्लियर? एप्पल्स एंड ऑरेंजेस हैव द फ्यू सीड्स। एप्पल में थोड़े बहुत होते हैं, ऑरेंजेस में भी थोड़े से ही होते हैं, बहुत सारे होते नहीं है। वाटरमेलन्स एंड पापायाज हैव मैनी सीड्स। वाटरमेलन्स और पापाया के पास कितने सीड्स होते हैं? बहुत सारे सीड्स होते हैं। आप लोग को सीजन में ये डेफिनेटली खाते हो ना, तो उसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं। So once again I am reading all the things about fruit. Listen it carefully, huh? Fruits such as mangoes and cherries only have one seed. Apples and oranges have a few seeds. Watermelons and papaya have many seeds. Clear? Now let's begin our third topic, seed. Seeds grow into new plants. सीड से क्या होता है? सीड से एक न्यू प्लांट ग्रो होता है। क्या होता है? सीड से एक न्यू प्लांट ग्रो होता है। अगर हमें कुछ भी नया प्लांट ग्रो करना है तो हमें क्या चाहिए? वी नीड सीड्स टू ग्रो न्यू प्लांट, राइट। अगर एटमॉस्फेयर फेवरेबल कंडीशन में उसको राइट अमाउंट में वाटर मिल रहा है, फिर सॉइल हेल्दी वाली सॉइल है जिसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, तो हमें क्या करना है? उसमें सीड डालने से उसकी थोड़े दिन केयर करेंगे, उसको सनलाइट में रखेंगे, एयर मिलेगी और वाटर मिलेगा, तो वहां पे एक न्यू प्लांट अच्छी तरह से ग्रो हो जाएगा। A seed needs the right amount of air and water from the soil as well as the correct temperature to grow into a new plant. जैसे मैंने बोला कि उसको राइट अमाउंट में एयर, वाटर और सनलाइट मिलेगा तो एक अच्छा वाला न्यू प्लांट ग्रो हो जाएगा। हमें टेम्परेचर का भी ध्यान रखना है। अगर कोई ऐसा प्लांट है जिसको मिनिमम अमाउंट में सनलाइट चाहिए और हम उसको मैक्सिमम दे रहे हैं, तो हमें उसका भी ध्यान रखना है, तो वो प्लांट मुरझा जाएगा,
नहीं ग्रो होगा, ऐसी ऐसी चीजें हो सकती है। जो प्लांट्स को ग्रो होने के लिए अच्छी फेवरेबल सॉइल चाहिए, मतलब कि देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर देयर, राइट? ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, ब्राउन सॉइल होती है ना, दीज आर द टाइप्स ऑफ सॉइल्स। तो जो प्लांट को जो सॉइल अच्छी वाली फर्टिलिटी वाली सॉइल उसको फेवरेबल कंडीशन में अगर मिलती है तो क्या होगा कि वो अच्छी तरह से ग्रो हो जाएगा। इक्वल टेम्परेचर मिलेगा तो फटाफट से ग्रो हो जाएगा। क्लियर? The process of growth of a new plant from a seed is called germination. Kids, जो सीड को हम सॉइल में डालते हैं फिर उसमें से रूट्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर उसमें से छोटा सा बेबी लीफ निकलता है, फिर बेबी प्लांट बनता है, फिर एक प्लांट बन जाता है, फिर धीरे धीरे ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक छोटी से लेके सीड में से रूट निकलने से ट्री तक बनता है, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? जर्मिनेशन प्रोसेस। क्या बोलेंगे किड्स? जर्मिनेशन प्रोसेस। ये जर्मिनेशन प्रोसेस आपको नेक्स्ट ईयर ग्रेड 4 में आपको डेप्थ में आएगी, राइट? अभी क्लियर हुआ कि इसको जर्मिनेशन प्रोसेस कहते हैं। सॉइल में सीड डालने से उसमें से रूट निकलने से बेबी प्लांट होता है, लीफ स्टेम निकलता है, लीफ निकलता है, बेबी प्लांट बनता है, फिर प्लांट बनता है और बाद में ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें पहले लीव्स आते हैं, फ्लावर्स आते हैं। तो ये सारी की सारी धीरे से छोटे से लेके बड़े होने की एक प्रोसेस होती है प्लांट्स की, उसको हम क्या बोलेंगे? जर्मिनेशन प्रोसेस। Clear? Once again I am reading all the things about seed. Listen it carefully. Seeds grow into new plants. A seed needs the right amount of air and water from the soil as well as the correct temperature to grow into a plant. The process of growth of a new plant from a seed is called germination. Clear? Here we completed our 3 topics. Let's begin our today's 4th topic. How plants are useful to us. मतलब कि प्लांट्स हमारे लिए किस तरह से यूजफुल होते हैं। We use different parts of a plant in the following ways. मतलब प्लांट्स होते हैं उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, राइट? मैंने बोला ना, शूट सिस्टम, रूट सिस्टम। शूट सिस्टम में फ्लावर्स आते हैं, लीव्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, स्टेम आती है, राइट? तो सभी के अलग अलग पार्ट्स को हम अलग अलग डिफरेंट वेज में उसका यूज करते हैं, राइट? We eat different parts of many plants. मतलब कि पार्ट्स अलग अलग होते हैं तो हम डिफरेंट पार्ट्स अलग अलग उसके ईट भी करते हैं, राइट? किसी के लीफ खाते हैं, किसी का वेजिटेबल खाते हैं, किसी का फ्रूट खाते हैं, राइट? तो डिफरेंट पार्ट्स हम डिफरेंट वे में उसको ईट करके खाते हैं। Radish and carrots are roots that we eat. मैंने बोला ना कि अंडर द ग्राउंड होता है, वो क्या होता है? रूट्स। बट ये रेडिश और कैरेट्स होते हैं ना, वो इटसेल्फ एक रूट है। क्या है वो? एक खुद रूट ही है। तो हम उसको खाते हैं, उस रूट्स को खाने में यूज करते हैं, राइट? अदरवाइज हम दूसरे प्लांट्स के रूट्स का यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि बीट, कैरेट, रेडिश, ये तीनों के तीनों इटसेल्फ रूट ही है, उसका हम एज अ फूड यूज करते हैं, राइट? Ginger and potato are stems that we eat. Ginger, आदू and potato, वो एक stem है। क्या है? वो एक stem है। Still we are using as a food, कि हम उसको फूड की तरह लेके हम उसका खाने में यूज करते हैं। We eat fruits such as mango and watermelon. फ्रूट्स है, मैंगो है, वाटरमेलन है, वो भी फ्रूट है, उसका भी खाने में यूज करते हैं, राइट? We also eat the leaves of plants such as spinach, cabbage and seeds of plants such as rice, gram and corn. Even बहुत सारे ऐसे भी plants हैं जिसके हम leaves खाते हैं। Spinach, पालक ना अपने पांदड़ा खाई छी, leaves खाई छी, राइट? फिर cabbage के भी leaves खाते हैं हम लोग। तो ये क्या है कि उसका लीव्स का भी पार्ट हम खाने के लिए यूज कर रहे हैं, जैसे कोरिएंडर, फेनुग्रीक, कोथमीर, मेथी, બધા लीव्स આપણે ખાઈ છે ને लीफ ने। तो these are the different parts, उसके different वेज में हम
खाने के लिए यूज करते हैं। फिर बात आती है सीड्स ऑफ अ प्लांट, मतलब प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं जैसे कि राइस, ग्राम एंड कॉर्न, उसके सीड्स भी हम खाने के लिए यूज करते हैं। राइस हम खाते हैं ना, राइस डेली खाते हैं, तो वो सीड्स है, फिर भी हम खाने के लिए यूज करते हैं। कॉर्न, वो भी हम सीड्स है, वो भी हम खाने के लिए यूज करते हैं। कॉर्न फ्लोर आता है, कॉर्न आती है, उसको सुखाने से आप मक्का ही बना नहीं सकती अपने लोगों, राइट। तो दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट वी आर यूजिंग एज अ फूड, कि डिफरेंट पार्ट्स को हम खाने के लिए यूज करते हैं। The seeds of mustard and cumin plants are used as a spices in cooking. मतलब मस्टर्ड के सीड्स और क्यूमिन सीड्स, राई जीरू એના આપણે સ્પાઇસીસ તરીકે યુઝ કરી છીએ। ખબર છે सबसे पहले मम्मी कोई भी वघार करे, मम्मी આપણે એમાં सबसे पहले हम क्या ऐड करते हैं, तो करी लीव्स भी ऐड कर सकते हैं और क्यूमिन सीड्स एंड मस्टर्ड राई અને जीरू આપણે ऐड करें तो वो किस में यूज होता है, वो एज अ स्पाइसेस यूज होता है। बट एक्चुअल में वो क्या है, वो प्लांट के सीड्स ही है। क्या है, प्लांट्स के सीड्स है, बट वी आर यूजिंग एज अ स्पाइसेस। गरम मसाला में भी આપણે લોકો यूज કરીએ છીએ। The leaves of plants give out a gas called oxygen during the process of making food for the plant. जो लीव्स जब पूरे के पूरे प्लांट के लिए फूड बनाते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, राइट। तो ये जब प्रोसेस कंटिन्यूअस वे में होती है तब वो एक गैस बाहर निकालती है। प्लांट्स जब फूड अपने आप को बनाता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू, तब वो एक गैस बाहर निकालता है, उस गैस को क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन। एज आई टोल्ड यू बिफोर, राइट, कि प्लांट्स क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ करता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। जब वो अपने आप को ये फूड बनाने की प्रोसेस करता है, एट दैट सेम टाइम वो ऑक्सीजन को रिलीज करता है, मतलब उसको बाहर निकालता है। क्लियर? मोस्ट लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन टू स्टे अलाइव, मतलब कि हम लिविंग थिंग्स को क्या चाहिए जिंदा रहने के लिए, वी नीड ऑक्सीजन टू अलाइव, राइट। हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ही जरूरत होती है। फ्लावर्स आर यूज्ड टू डेकोरेट आवर होम्स, मतलब कि प्लांट्स जो फ्लावर्स बेयर करती है, प्लांट्स के पास जो फ्लावर्स होते हैं, इसका हम क्या यूज कर सकते हैं, उसको हम घर को डेकोरेट करने के लिए यूज करते हैं। कोई भी गॉड है तो उसके सामने उसको रख के उसको यूज कर सकते हैं, राइट। बाकी क्या होता है कि फ्लावर्स सच एज जैस्मिन एंड रोज आर यूज्ड टू मेक परफ्यूम्स, मतलब जैस्मिन रोज है जो जिसकी अच्छी स्मेल होती है, जो फ्लावर्स की, इसका हम परफ्यूम बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। नाउअडेज हम किसका यूज करते हैं ज्यादातर, सैनिटाइजर का, राइट। अभी तो सैनिटाइजर में भी स्मेल आती है मोगरा की, एप्पल की, ग्रीन एप्पल की। सो डिफरेंट वे में हम डिफरेंट टाइप्स की स्मेल को परफ्यूम्स में या फिर सैनिटाइजर बनाने में इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर किड्स? आई होप सो यू अंडरस्टैंड हाउ प्लांट्स आर यूजफुल टू अस। Once again I am reading, listen it carefully. We eat different parts of many plants. Radish and carrot are roots that we eat. Ginger and potato are stems that we eat. We eat fruits such as mango and watermelon. We also eat the leaves of plants such as spinach and cabbage, and seeds of plants such as rice, gram and corn. The seeds of mustard and cumin plants are used as spices in cooking. The leaves of plants out of gas called oxygen during the process of making food for the plant. Most living things need oxygen to stay alive. Flowers are used to decorate our homes. Flowers such as jasmine and rose are used to make perfumes. So kids, here we completed our chapter and session both. In today's session, what I explained you, I explained you about flower, fruit, seed and how plants are useful to us.
फ्लावर्स में कितने टाइप्स के फ्लावर्स होते हैं, उसके शेप, उसकी साइज, उसकी स्मेल, सब कुछ डिफरेंट होता है। फिर फ्रूट है तो फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं, किसी के पास फ्यू सीड्स होते हैं, किसी के पास बहुत कम सीड्स होते हैं, किसी के पास बहुत ज्यादा सीड्स होते हैं, राइट। फिर है सीड्स में से एक न्यू प्लांट बनता है, उसको क्या बोलेंगे, जर्मिनेशन प्रोसेस। क्या बोलेंगे, जर्मिनेशन प्रोसेस। फिर है हाउ प्लांट्स आर यूजफुल टू अस, कि प्लांट्स हमें डिफरेंट वे में किस तरह से यूज होता है। किसी के रूट्स को हम खाने के लिए यूज कर रहे हैं, किसी का स्टेम को खाने के लिए यूज कर रहे हैं, किसी के लीव्स खाने के लिए हम यूज कर रहे हैं, राइट। किसी के सीड्स हम खाने के लिए यूज कर रहे हैं, किसी के सीड्स हम स्पाइसेस में यूज कर रहे हैं। सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स हाउ प्लांट्स आर यूजफुल टू अस। Clear kids, here we completed our whole chapter. In next session I am going to explain you textbook exercise. Next session में मैं आपको क्या explain करूँगी, textbook exercise, blanks, true or false, choose the correct answer, answer in short, answer in brief. Clear? But right now in this session I have shared a PDF with you, right? Try to solve it by your own self. It is too easy है। अगर सेक्शन अच्छी तरह से समझ लिया है तो आपको आंसर इजीली आ जाएंगे। ओके किड्स, तो टिल नेक्स्ट सेक्शन, बाय।